السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یازی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے، بجلی کے بلوں نے عوام کی جو رہی سہی کسر تھی وہ بھی اب نکال دی ہے اور عوام بجلی کے بلوں سے شدید پریشان دکھائی دے رہا ہے۔ آئے روز احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی احتجاج کی کال دی جا رہی ہے، تاجر تنظیموں کی جانب سے احتجاج کی کال دی جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام شہروں میں اسپیشلی جنوبی پنجاب میں اس حوالے سے کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ لوگوں کی آمدن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے، جو ٹیکسز کی شرح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے جس کے باعث جو گھر کا کچن ہے وہ بھی اب مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری جانب جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے، عوام کے پاس جائیں گے اور ان سے جانیں گے کہ وہ موجودہ صورتحال کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ہم اس وقت حسین گئی بازار میں پہنچے ہیں اور یہاں پر ہم ذرا لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عام آدمی اس ساری صورتحال سے کس حد تک پریشان ہے۔ السلام علیکم بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جی۔ بجلی کے بلوں کی صورتحال، پیٹرولیم مصنوعات کی صورتحال، کھانا پینا، کس طرح سے آج کل چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا، مینیج ہو ہی نہیں رہا ہے، یہ بڑی مشکلوں سے سسٹم چل رہا۔ بازار دیکھو خالی ہے، کوئی گاہک ہی نہیں ہے، کسٹمر ہی نہیں ہے۔ 15,000 کا بل آ گیا، 2500 کا بل آتا تھا، تو کیا کریں اب؟ گھر چلائیں، بل بھریں یا پیٹرول ڈلوائیں گاڑی میں، کیا کریں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ مشکل ہوتا جا رہا ہے، بہت مشکل کیا، ناممکن ہو گیا پڑا۔ ابھی وزیر اعظم نے کل جو بھی نگران وزیر اعظم ہے انہوں نے اجلاس بلایا، کہا کہ بجلی کی جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس پہ ہم مشاورت کرتے ہیں۔ پتہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میرے کمرے کا AC بند کر دو، عوام کو ریلیف دو۔ آپ کو یقین آتے ہیں؟ نہیں، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، یہ عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ جو اور گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے گھروں میں جا کے دیکھو، واش روموں میں AC چل رہے ہیں ان کے، کچن میں AC چل رہے ہیں ان کے، اور یہاں عوام کے پاس لائٹ ہی نہیں ہے۔ بل 20-20 ہزار روپے کے آ رہے ہیں۔ 1000 روپے تو میری آمدنی ہے روز کی، لیکن آج کل وہ بھی نہیں ہو رہی۔ 15,000 کا بل آ گیا، 15,000 کا بل آ گیا، بچوں کی پڑھائی ہے اور اخراجات ہیں، کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کسی عوام کی، یہ چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ کہاں جائیں کیا کریں؟ یہ صورتحال ہم ذرا بھجن کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک حال ہے جی۔ سنائیں بجلی کے بلوں کی حال دیں۔ بجلی کے بلوں کے حال بہت زیادہ ہے، اچھا، مزدور لوگ ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ کتنا بل آ گیا؟ تقریباً 2500 آ گیا۔ 2500، چلیں پھر بھی آپ کا تو کچھ بہتر آ گیا۔ فیملی تو چھوٹی ہے نا، ہاں، تو پھر بھی 2500 زیادہ ہی ہے۔ پہلے کتنا آتا تھا؟ پہلے آتا تھا تقریباً 1800 1200 بس۔ جی آپ صورتحال جان، ہم ذرا آگے بات کرتے ہیں۔ کیا حال ہے جی آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ بجلی کے بل عوام تو بہت پریشان نظر آ رہی ہے، کیا کہیں گے؟ پچھلے مہینے 3 مہینے کا بل 6,000 کا بڑھا، اب دیکھیے 8-9 ہزار روپے کا بل آ گیا، کہاں سے بھروں؟ میں نے تو 3 مہینے پتہ نہیں کس طرح چھاپے بچے بھیک مانگ کے بل بھرا تھا، اب یہ دیکھ 9,000 تک پہنچا ہوا ہے بل۔ ہاں، یہ 1 مہینے کا 3 مہینے کا 6,000 روپے کا بل بھرا پچھلے مہینے، 3 مہینے کا اب 9 آ گیا۔ ہاں، اب ایک ہی مہینے کا 9 کا آ گیا، کیا کروں؟ کہاں سے لاؤں؟ مال بھی نہیں اتنے کا، تو جتنے کا جمع پونجی بھی نہیں، میٹر ہی کٹے گا، بچے بھوکے مریں، کیا کریں؟ بچوں کو گلا کاٹتے ہیں، کیا کریں کیا نہیں کریں، ہم تو پریشان ہوں۔ یہ مال ہے میرے پاس 9-10 ہزار روپے کا مال ہے، دیکھنا یہ کاپی کتاب ہے، اتنی کی جمع پونجی نہیں جتنے کا بل آ گیا، کہاں سے گزارا کریں؟ گزارا ہو رہے نہیں۔ پہلے بھی اپنا بل تھا، جب ان کا 3470 روپے تھا تو یہ بھی 3 مہینے نہیں پے کر سکے تھے، پھر یہ 6,917 روپے بنا، وہ مشکل سے پے کیا۔ اب 1 مہینے کا جو پہلے 3 مہینوں کا 6,917 روپے آیا تھا جو کہ انہوں نے بڑی مشکل سے ادا کیا تھا، 1 مہینے کا 9,280 روپے آ گیا، تو یہ آپ کیسے ادا کریں گے؟ یہ کافی زیادہ پنکھا نہ بجلی کچھ نہیں، یعنی کہ چھت پہ سوتے ہیں، اپنی طرف سے پوری بچت کر رہے ہیں۔ پوری بچت کر رہے ہیں، فل بچت۔ آپ حال دیں جی۔ بے حال ہے، کیا حال دیں بھائی؟ کوئی حال نہیں ہے، حکمران خوشحال ہیں بس، باقی عوام پریشان ہے، جہنم میں گزری ہوئی ہے۔ عوام کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے گزارا۔ اور جہنم رسید ہوئی کھڑی ہے، عوام جہنم میں رسید ہوئی کھڑی ہے۔ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، مشکل ٹائم ہے، برداشت کر لیں، گزارا کر لیں۔ وہ اپنے لیے مشکلیں آسان کر رہے ہیں، اپنی مشکلیں دور کر رہے ہیں، عوام کی نہیں کر رہا کوئی بھی۔ صرف کہتے ہیں میرا AC بند کر دو۔
अरे यहाँ तो सब कुछ ही बंद हुआ पड़ा है। अब हम क्या अल्फाज इस्तेमाल करें, सब कुछ बंद हुआ है। आप समझदार हो। अवाम तो बहुत परेशान है। बाजार के हाल देख लो, कारोबार 1 रुपए का नहीं है। वो खुद बैठे हुए हैं, लग्जरी गाड़ियों में बैठे हुए हैं, एसी से उनके रात दिन चलते हैं, उनका कोई बिल नहीं होता। पर सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत आज़ाद है और महकमे आज़ाद है, बाकी अवाम तो कैद में पड़ी है जहन्नुम में। बावड़ा के महकमे को किस कदर रिलीफ मिल रही है, उनके यूनिट फ्री, उनकी बिजली फ्री, वो जो मर्जी चलाए, वो कोई मसला नहीं है उनका। हमारे में तो 5 रुपए का खर्चा, ये एक बल्ब जो मीटर में बल्ब जलता है ना, इसका आता है 2 रुपए। ये सारी अवाम इकट्ठा कर 20 करोड़ रुपए बन जाएंगे एक बल्ब का, वो जो मीटर में जल रहा। एक बल्ब जो मीटर में जल रहा है ना, तो 20 करोड़ बन जाएंगे उसके एक दिन के। आप गुफ्तगू जाने हो गए, सारा मलबा अवाम पे डाला जा रहा है। हम जरा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनके कैसे हाल वाल गुजरे हैं। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। सुनाएं कैसे चल रहे हैं मामलात? मामलात तो बहुत ख़राब चल रहे हैं। बिजली के बिलों की वजह से या महंगाई की? बिजली के बिल भी, महंगाई भी, हर चीज़ अरूज पे है। बड़ी मुश्किल है गुजारा। समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है मुल्क में। कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या करें, क्या कारोबार का कोई हालात नहीं है। क्या सोचा है आपने? क्या सोचें, अब उधार पकड़ पकड़ के कर्जा ही हो गए, वो अलग है। बड़ी परेशानी में और मुश्किल में बैठे। हुकूमत जो अभी आई है कह रही थी कि हम कोशिश करेंगे, अवाम को कुछ उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि और बिजली के बिल महंगे कर दिए, पेट्रोल महंगा कर दिया, महंगाई कर दी। परेशानी में बैठे। और तो पहले वाले गए थे, पहले वाले भी करके गए, बहुत महंगाई, इन्होंने भी बहुत महंगाई की, कोई फर्क नहीं, कुछ भी नहीं। गरीब आदमी के लिए तो अजाब हो गया, जीना मुश्किल हो गया। जीना मुश्किल। क्या हाल है जी आपके? शब्बीर हुसैन। जी फरमाएं शबीर हुसैन। हालात आपके सामने ही है सर, आपके सामने बिजली कितनी महंगी होगी, लोगों का पहले खाना पीना मुश्किल हुआ पड़ा है। हालात बहुत तंगी हो रही है, यानी कि बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। बस हुकूमत से ये अपील है भी गरीब आदमी के बारे में रिलीफ दी जाए, मेहरबानी। हुकूमत से अपील करेंगे गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। बाबू जी क्या हाल है आपके? हमारे बिल आप भरेंगे भाईजान? जो इतने बिल आ रहे हैं, आप इंटरव्यू लेते हैं, हमारा बिल भी आप भरा करें। फिर ये इंटरव्यू देने का मतलब भी यही होता है। नहीं, हम तो आपकी आवाज आपके हुकूमत तक पहुंचाते हैं, जिनको आप मुंतखब करते हैं। आवाज जाती तो हुकूमत सुनती, जाती है, अमल नहीं होता उसपे। हाँ, अमल कौन करेगा? तो आप अच्छे बंदों को वोट दिए गए ना। तो यार की वोट कहीं को नहीं मिलेंगे ऐसा। जो भी आएगा बस सुकून से घर ही जाएगा। हमारे काम नहीं देंगे तो फिर वही आ जाएंगे। कौन? वो जो पहले आए। आने दो, कौन पहले? हम कौन सा खुशहाल है? पहले भी तो मर रहे हैं सारे, और टैक्स लग नहीं जाएगा। मर रहे, लगने दो, कोई नहीं। कोई भी हुकूमत है, गरीब तो फिर भी मेहनत करके गरीब मेहनत करके खा रहा है। हाँ जी, हुकूमत अपने घर राजी है, हम अपने घर राजी हैं। हमारा ये है कि हमारा रोजगार जो अल्लाह पाक ने लिखा हो वो हमें मिल जाता है। उन्होंने हमें कुछ नहीं देना आगे। अब आप कह रहे हैं कि हमारा हुकूमतों से, सियासतदानों से कोई वास्ता नहीं कोई है। वास्ता नहीं है भाई। कैसे हैं आप? आपकी दुआएं सर, आप ठीक नहीं, क्यों आप जमहूरियत से मायूस हो गए? इसलिए नाराज हो गए कि हुकूमत ने हमें आज तक दिया क्या है। अब देखो, जितने भी रिश्के वाले हैं, जितने भी गुर्बत हैं, मजदूर हैं, जितने भी मेहनत करके खा रहे हैं, कभी ये जितनी भी अब बड़ी आवाम है, ये बड़े लोग, उनको एक दिन गरीब की तरह मेहनत करके कमा के दिखाएं, और एक दिन के कमा के उनकी तरह मजदूरी करके रोटी खा के बताएं कि चूल्हा घर में कैसे चलाया जाता है। हमारी हिम्मत है, हम सुबह से निकलते हैं, शाम तक कमाते हैं, बच्चों की जाके रोटी, जिसके घर में एक पक है उसका भी 8-8 10-10 हज़ार बिल आ रहा है। इनको खुदा का खौफ नहीं है क्या इन्होंने मरना नहीं है? 200 यूनिट जले तो डबल बिल आ जाता है। हैरत की बात तो ये है, 200 यूनिट जले तो डबल बिल आ गरीब जाता कहाँ है। जाए? एक पंखा, एक घर के अंदर मोटर है। घर के किराए भरे, घर के बिल भरे, बच्चों का पेट भरे, कहाँ से भरे? इसलिए तो लोग खुदकुशी कर लेते हैं। इनको एहसास नहीं, इनका कोई अपना मरे तो उनको पता लगे कैसे कोई मरता है। ये तो बैठ के हमें स्पीकर पे हमें बातें सुना देते हैं। हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि हमारी गरीब आवाम कैसे कमा रही है, हमारी गरीब आवाम हम कैसे अपने घर का पेट, बच्चों का पेट भर रही है। हमारे लिए करो, हमारे लिए अच्छा नहीं सोचेंगे तो हम हमारे पे वोट पे अब तवज्जो न रखें। अभी निगरान हुकूमत है, अभी एक इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो फिर आपके घर वोट मांगने आएंगे वो। हम नहीं देंगे इंशाल्लाह। तो फिर किसको देंगे? अब खत्म, हमारा दिल जल गया इनसे। तो फिर वही आ जाएंगे। जो हमारे यहाँ गरीबों के साथ, आवाम के साथ अच्छा करेंगे तो हम आवाम इनके साथ मिलेंगे, इनको सपोर्ट भी करेंगे और इनको वोट भी देंगे। जो हमारे साथ अच्छा नहीं करेंगे, अगले 5 साल में 2 हम अच्छा करेंगे। अब 5 साल में देख लेना। अब ये कुछ अब तक कुछ लोग मरे हैं ना, अब 5 सालों में और देखना कितने मरते हैं। लोग रोडों पे आके ना अपने आपको आग लगाएंगे। इनको कुछ नहीं जाना। उस घर में जाके देखिए जिसके घर में एक कमाने वाला 10 खाने वाले हैं। कभी अमीर ने बैठ के उधर देखा है? अमीर तो बैठ के, जितने भी हुक्मरान बैठे हैं, ये सियासतदान बैठे हैं, ये बैठ के हम बातें तो कर देते हैं। कभी किसी के घर जाके दरवाजा खड़का के देखे घर में चूल्हा कैसे जलता हूँ गरीबों का? हमसे पूछें,
हमारा दिल जलता है, हमारा हम खून पसीना निकाल कर अपनी मेहनत करके जाते हैं, हमारे घर में फिर भी पूरी नहीं पड़ती। गैस महंगे हैं, पेट्रोल महंगे हैं, क्या करे बंदा। हमारे इलाके के जो नाज़िम है ना, नाज़िम, आज तक वो नाज़िम ही पूछने नहीं आए भाई आप कैसे हो, सुखी हो या दुखी हो, घर में चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा, भले कुछ भी हो, नाज़िम अपने घर तक ही है, गरीब नहीं आता आवाम के लिए। हाँ, कुछ भी नहीं गरीब आता। के घर तक नहीं आता नाज़िम में कुछ पूछने भी के नहीं लिए। आता, कोई भी नहीं आता पूछने के लिए। हमारे घर के सिर्फ आगे वोट कूड़ा मांगने पड़ा के लिए होता है, जब आते हैं ना, जब वोट मांगने के लिए फिर आके दरवाजा खड़काते हैं, हम आपके साथ हैं, हमें वोट दो। जब वोट लेके जाते हैं हमें पूछने तक भी नहीं आते। अभी तूने बार बार क्यों वोट देते, ना दिए करें किसी और को दे दें। इंशाल्लाह आप नहीं देंगे, वोट दें किसी बंदे को दे दें, इंसान के बच्चे को अच्छा दें। बंदा मिले तो देना। जो पहले वोट मांगने से पहले हमें हजार दावे करता है कि हम आपके साथ रहेंगे, हम गरीबों के साथ ताउन करेंगे, हम गरीबों को ये सपोर्ट देंगे, क्या देता है तक सपोर्ट किसने दिया आपने। अब माशाल्लाह दिन में कितने आपके इतनी स्पीरिंग आपने काम किया हुआ है। आज मैं बता आप भी दुनिया गली गली में घूमते हैं, आज तक देखिए किसके घर में चूल्हा जल रहा है सुख से, कोई भी नहीं सुख से खा रहा, हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है जी। आप क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। भाई ने जितनी बड़ी तकरीर की है, आप क्या कहते हैं इस पे? आज तो मेरे बच्चे के साथ जास्ती हुई है, यानी कि बच्चा गया था अस्पताल दवाई लेना वास्ते, उसके 10 पर्चे दे दिए थाने चेलिया ने। अब मेरे बच्चे को मैंने जमानत करा के भेजा, रुलता फिर रहा हूँ मैं, RTO के पेश होया तो उसने कह दिया जी सिटी पे चले जाओ, सिटी FC सुनता नहीं है, वो कहता जी आ जाना कल आना, आ जाना कल आना, दौलत गेट थाने ने पर्चा दे किस दिया, केस में उठा लिया? यानी कि यही लगा दी डकैती का। अच्छा, मेरे बच्चों की नाजायज इंसाफ चाहिए मुझे तो आपका बेटा आप कहते हैं कि उससे किसी गलत काम में मुलविस नहीं था? नहीं है मेरे बेटा ना। कितनी उम्र है उसकी? 18 साल उम्र है उसकी। स्कूल जाता था नहीं जाता? नहीं, वो 5 सिगरेट की दुकान बना के दी। किसकी दुकान थी? 5 सिगरेट की दुकान दोनों बच्चों को मैंने दिल्ली गेट में। अच्छा, ये आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इनके बेटे को पुलिस में गैस तंग कर रही है, और एक बार उन्होंने जमानत कही लेकिन उसके बाद दूसरे थाने में FIR हो गई, अब वो पुलिस पीछे लगे हुए, अब वो कहाँ से जमानतें कराते फिर जी हाल है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं बिजली कीमतों में इजाफे के हवाले से अवामी एहतजाज की, और अब ताजरों की जानिब से भी हड़तालों की कॉल दी जा रही है। हम इस वक्त हुसैनागंज बाजार में पहुंचे हैं। आपने पहले भी दुकानदारों का, ताजरों का रद्द-ए-अमल जाना, हम जरा मजीद लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आप? अल्लाह की रहमत है सर। कैसे चले काम काज? बस ठंडे मीठे हैं सर। ठंडे मीठे काम चल रहे जी हैं। सर। ऐसा हुआ क्या है कि क्यों आपका काम स्लो हो गया? सर बिजली की कीमतों में इजाफा, महंगाई में इजाफा, परेशानी से हमारी आवाम क्या शॉपिंग करेगी, खाने को है नहीं, बिजली भरने को पैसा है नहीं, बच्चों को कुछ भी ना स्कूल के पैसे हैं, तो कहाँ ये कारोबार चलेंगे। कारोबार की पोजीशन डाउन है, बिल्कुल डाउन है सर। कोई लगता है कि हुकूमत को आवाम का ख्याल आ जाएगा? इंशाल्लाह जी, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब नए आए ना, जो काकड़ साहब, हमें बड़ी खुशी है, हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। जो इन्होंने 70 साल से कोई कुछ नहीं कर सका, जो इन्होंने नोटिस लिया इस बात का, जो हमारे हक हलाल के पैसे जो बड़े बड़े अफसर बिजली यूज़ कर रहे थे, इनके यूनिट बंद किए जाएंगे, इनके बंद यूनिट किए जाएंगे, हम इन्हें सलाम पेश करते हैं। आप इस बात पे खुश हैं? आप कहते हैं खुश हैं सर, कि ये ये जो हमारे मुफ्ता लगा हुआ है खत्म होना चाहिए। बिल्कुल खत्म। और देखो जी, मेरी अब सैलरी 50,000 है और मुझे 500 यूनिट मिल जाए, और जो मेरे से नीचे वाला तबका हो उसकी 15,000 सैलरी हो और उसका 18,000 बिल आ जाए, तो वो मुझे बददुआएं देगा ना, मेरे बच्चों को बददुआएं देगा, सबसे बड़ी बात वज़ीर-ए-आज़म को बददुआएं देगा। आप कहते हैं कि अफसरान के ये मुफ्ते खत्म होना चाहिए। अफसरान खत्म होने चाहिए, मुलाजिम है उनके भी खत्म होने चाहिए, क्योंकि वो 70,000, 50,000, 40,000 तनख्वाह लेते हैं, उससे नीचे वाला तबका भी बड़ा है, जिसकी 15,000 सैलरी है, जिसकी 18,000 सैलरी है, उसकी तरफ कौन देखेगा? हम पूरे मुल्क की तरह हम सब गरीब टैक्स मिलकर मिला के दे रहे हैं, और ये अपनी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, सालों की छुट्टियां भी ले रहे हैं, हफ्ता इतवार छुट्टियां भी ले रहे हैं, जुम्मा हाफ डे भी ले रहे हैं, और उसके बावजूद फ्री मिनट चल रहे हैं उनके। चलो जी जान दो जी, यूनिट पे यूनिट फ्री हैं। मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ वज़ीर-ए-आज़म को, खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो इस टाइम निगरान बैठे हैं, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। ऐसे उन्हें इक़दामात लेने इस पे चाहिए। अमल भी हो जाए। और एक बात और भी कहना चाहूँगा सर, जो ये हालात इतने परेशान है, जो 15 पे कॉल चलकर उन्होंने पुलिस वालों ने घर जाकर खाना पहुँचाया, ये काम हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को करना चाहिए। इतनी महंगाई, इतनी परेशानी ना करें, जो खुद खुशी हो और जो और ऐसे हादसे हों, और हम सलाम पेश करते हैं पुलिस वालों को भी। ये भाई आज पुलिस की भी बड़ी तारीफ कर रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म साहब की भी तारीफ कर रहे हैं। अल्लाह के इस पे अमल भी कर लें। हमारे यहाँ दावे किए जाते हैं, बयानात दिए जाते हैं। इस वक्त हमारे यहाँ जो करोड़ों की आबादी है, 25 करोड़ से ज़्यादा हमारी आबादी है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे यहाँ कुछ सिस्टम ही ऐसा नहीं है जिसमें हम जो लोग भूखे सो रहे हों तो हम उनको खाना खिला सकें। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा सेटअप ही नहीं है। तो ये सूरत हाल है। क्या हाल है भाई? और पर ठीक है भाई। क्या करते हो? तनूर का काम करते हैं। किसका?
तनूर का काम तनूर ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰਾਇਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ जे जे सरायकी दे हम सरायकी दे हैं लालया ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਪਈ ਅੱਜ ਕੱਲ कोई अच्छी कहनी गुजरती भी लालया ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀ ਗਈ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਹੁੰਚ ਗਈ महंगाई की वजह को मजदूरी मिलती नहीं ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਅੱਜ ਕੱਲ मजदूरी मिलती पे कंजा 700 कंजा 800 700-800 रुपए जी ये जी तो मत से 22-23,000 रुपए बन सी जी बिल बिल दे गिनो कितना आगे ने बिल 5,000 6,000 असर देहात जरावण वाले हैं अच्छा तो गुजारा मुश्किल थी ना मैंने गुजारा मुश्किल चाप मो जीना आराम है तक ये हुकूमत की कीता है जी पहले 5 साल हुकूमत नहीं है जेरी आज ने तो खिदमत की थी उन्होंने बाकी खिदमत की थी कहते खिदमत की मजदूरी करे ने ऐसे खांदे आसे ना लाला उन्होंने घरों दे ना गिनदे आंदे आसे ना ठीक है ना अपनी खांदे पींदे आसे करते करे ने हुन मजदूरी मिलती नहीं और सब महीना थी के आए हो घरों आए हो काम ही नहीं मिलता काम नहीं मिलता पे महंगाई की वजह को क्या हाल है जी आपके अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक अभी सूरत हाल बिजली के बिल सबके आ रहे हैं कितनी ज्यादा परेशानी हो रही है है। बहुत ज़्यादा परेशानी, इतनी इनकम नहीं है जितने हमारे बिल आ रहे हैं। गैस का भी इतना बिल आ रहा है, टैक्स लगे हुए हैं फालतू में, और बिजली का भी इतना बिल आ रहा है। हम गैस के बिल, बिजली के बिल, घर के रेंट भरें, अपनी बच्चों को रोज़ी कमाएं। क्या महंगाई इतनी है, इसने कमर तोड़ के रखी हुई है हमारी। तो क्या हुकूमत, जो अगले हुकूमत आएगी, क्या हमारा खाक वो करेगी? हमें अभी से नज़र आ रहा है कि आगे इसमें क्या करना है। 2 हुकूमतें गुजरी हैं 5 साल में, अब तीसरी निगरान आपकी खिदमत के लिए मुतय्यन हुई है, तो इन 3 हुकूमतों ने अब तक क्या किया है? तो कि 3 हुकूमतों ने भी यही कुछ किया, निगरान हुकूमत ने इससे भी ज़्यादा कर दिया। आते ही महंगाई का पहाड़ तोड़ दिया हमारे सरों में। बिल खजाना खाली है तो क्या करें? तेल चढ़ा दिया है। खजाना जो खाली है, खजाने कहाँ से खाली है? हुक्मरान खा खा के बैठे हुए सारे। खिदमत की है मियाँ साहब कहते हैं, पेट भर रहे हैं, गरीब का सोच ही नहीं रहे किसी का कुछ। मियाँ साहब कहते हैं खिदमत की है, कपड़े बेचने को तैयार हो गया और मैं क्या करता आपके लिए? अरे कुछ भी नहीं किया मियाँ साहब ने, खाली बातें की। खाली बस भाषण देते हैं, टीवी पे बैठ के तबसरे देते हैं बस। हम जरा आगे बात करते हैं और इनसे भी बात करने की कोशिश करें। वजन क्या हाल है आपके? कोई हड़तालों की गाल दे रहे हैं ताजिर? अच्छी बात है, होनी चाहिए। महंगाई के खिलाफ ये काम होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए हम आपको। अब देखो मेरा स्टॉल है यार, ये मेरा 56,500 का बिल आया है। 56,000 का? कसम से 56,500 का बिल आया। रोज ये ठिये पे खड़ा हूँ, 56,500 का बिल आया, जो आज तक नहीं आया। हद, चलो मेरे घर एसी लगा हुआ है, रात को एसी चलता है। इस्तेमाल कर लिए थे यूनिट यार, हमें तो समझ नहीं आ रही। उसने फोटो ऐसे खींची है वावड़ा वाला ने, और फोटो हमारे समझ में नहीं आ रही। वो आपने रीडिंग चेक किया, आपको समझ नहीं है कैसे लगाए पे? हाँ जी, हम ऑफिस गए, कह रहे जी ये आपने फूक रखे हैं यूनिट। यानी जो उनके घर यूनिट चल रहे हैं ना वावड़ा वाले के, वो तो हमने भरने हैं ना, वो भी आवाम के खाते में डाल दें। आवाम के खाते में भाईजान। ये खत्म होने चाहिए यूनिट। मुफ्त लगा हुआ है, मुफ्ता अच्छा वाला मुफ्ता लगा है। जब से ये वावड़ा ये बहाल हुई हुई है, जब से मुफ्ता लगा हुआ है इनका, इनके बिल हम ही भर रहे हैं। छोटे से छोटा जो मुलाजिम है ना, उसके भी 500-600 यूनिट है फ्री के। और हमारे 500 आ जाए तो लाख का बिल आ गया। 200-250 यूनिट उसके घर चल रहा है, बाकी बेच रहे हैं वो 7 लोगों। बेचते हैं ये? बिल्कुल बेचते हैं ये भाईजान। तनख्वाहें अलग ले रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं वो अलग, बिल हम पे कर रहे हैं इनके। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या, ये इनके बिल भरने हैं हम ही। राजन काम करके इनकी खिदमत कर। भाईजान यकीन करो, अब अभी तक यकीन करो 20 बिल अब हुई है, और अभी नए बिल आने वाले हैं। अब क्या करूँ मैं? यही बेचूँ मोबाइल, ये मोबाइल बेचना मैंने जहन बना रखा है, अब यही बेचना रह गया। अब ये हर महीने आए खड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही भाई, बिल्कुल ऐसे ही यार, हमको बाहर निकलना चाहिए इनके खिलाफ। ये जो बाप डाले हैं ना, जो इन्हें 2.5 लाख 2-2 लाख तनख्वाह है, इनकी बिजली फ्री है, पेट्रोल फ्री है इनका, यार वो हम पे कर रहे हैं। वो या मरना भूल गया इन्हें। ऐसे ही भाई सही फरमा रहे हैं। ये लोग मुल्क को लूटने पे लगे हुए हैं, गरीब बंदा मर रहा है, किसी को कोई एहसास नहीं है। खान साहब जो लोगों के हक में बेहतर थे उनको अंदर डाल दिया, एक मुल्क को लूट के पाकिस्तान से बाहर भाग गए। अभी भी इन लोगों की हुकूमत बैठी हुई है। ये जो अब मौजूदा हुकूमत है, ये कह रही जो साइन कर गए थे वो उसी हिसाब से हम लोग जो है रेट बढ़ा रहे हैं, और बात भी सही है। इनका क्या कसूर है? पीछे से जो ये हमारी हुकूमत नहीं थी, ये 13 जमातों की हुकूमत थी। पीपल पार्टी कहती है ये हमारी हुकूमत नहीं थी, उनकी थी। अब तो वो मान ही क्यों नहीं रहा ये किसकी हुकूमत थी? सारे चोर एक प्लेटफार्म पे आ गए थे ना जी। उन्होंने एक बिल्कुल सही किसी ने फरमाया कि जो है ना जी, एक और सही बंदे के पीछे जो है ना जी सारे के सारे लग जाते हैं, उसका सत्यानाश कर देते हैं। अल्लाह उसके साथ है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। खान आएगा, मुल्क का हालात सही होंगे इंशाल्लाह। इनकी जो इमदाद आती है बाले मुल्क से, वो सारों की है, वो इन सारों की है, ठीक है ना जी। जो ये महंगाई कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये वो कर गया है।
महंगाई एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, जो इन पे इमदाद आती है वो हम सारों की है। कह रहे हैं कि ये सिर्फ सारे मिले हुए हैं और सारे आवाम पे वोट डाल रहे हैं, बस आवाम के सामने आने के लिए कहते हैं कि जी हम अलग अलग हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ है। कैसे चला काम आज? सही है अल्हम्दुलिल्लाह, पर महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, ज़्यादा हो गई? परेशान ज़्यादा आ रहे हैं? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कितना आ गया? 10,000। 10,000। आप तो सारा दिन यहाँ पे खड़े होते हैं, काम कर रहे होते हैं। वो 200-300 रुपये कमाते हैं, फिर उसमें दूध भी लेना होता है, जाहिर सी बात है अंडिया भी बननी होती है, फिर बिजली का बिल, तो फिर जाहिर सी बात है बाइक बेचो या गुर्दा बेचो। हमारे साथ नहीं, सबके साथ ही है। अब मैंने कल खबरें देख रहा था, तो उन खबरों पे आया है कि 3 दिन से भूखी एक खातून अपने बच्चों को लेकर 15 पे चली गई, उनसे इमदाद ली है। क्या मुल्क बिल्कुल ही बर्बाद हो गया है। अपनी बत्ती फ्री जला रहे हैं हाफिज साहब, और हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। नहीं, ये साजिश काम नहीं की उन्होंने। ना ना, बिल्कुल भी नहीं। बड़ी प्रोटोकॉल से कारों में जाते हैं, कोई भी वजीर आजम आ जाए। अभी भी कोई खाके अवानी साहब है, काकर अवानी साहब, अनवारुल्लाह काकर, जो कुछ भी है, जिसका भी है, बलाल मुल्क का बर्बाद कर रहे हैं वो, और आवाम को तो देख भी नहीं रहे। कि मुल्क बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मईशत को बेहतर कर रहे हैं। अगर मुल्क बच भी गया, आपसे मेरी अपील है, अगर मुल्क आपसे बच भी गया तो आप सबसे पहले आवाम को देखना, क्योंकि आवाम बहुत परेशान है। हड़ताल हुलतोल करने की सोच रही है आवाम, और जब हड़ताल हुई तो पूरा पाकिस्तान बंद होगा आपका। अब आप कहते हैं आवाम की बस हो गई है। आवाम की बस हो गई जी। हम देख रहे हैं पेशावर में, मुल्तान को छोड़ के पेशावर, रावलपिंडी, यानी कि कराची, लाहौर, हर कहीं तो हड़ताल हुई है। औरतें निकली हैं घरों से बिजली का बिल लेके, पर बिजली के बिल बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। जो 10,000 रुपये की बिजली भरता था वो लाख की भर रहा है, जो 2,000 की भरता था वो 10,000 की भर रहा है। गैस कह रहे हैं गैस मिलेगा ही नहीं, हमारे घर गैस का मीटर है ही नहीं। और मिलक की वो मीटर की अपील दी है, तो मीटर कह रहे हैं देना ही नहीं, हमने मीटर गैस देना ही नहीं है। 500 रुपये 2 किलो गैस डलती है, वो हफ्ते में ख़त्म हो जाती है। 500 रुपये इसका भी हफ्ता देना पड़ता है। ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं कि हर चीज़ के रेट में इजाफा हो चुका है। आप भाई जिस तरह बता रहे हैं, बिजली, गैस, पानी, खाना पीना, आटा, घी, हर चीज़ का रेट डबल हो गया। कोई आमदन भी बढ़ी है आप लोगों की? सर आमदन कहाँ बढ़ी है, आमदन वहीं खड़ी है। बल्कि अभी ये सीज़न आएगा, गर्मी में मंदे, सर्दी में मंदे होंगे तो हमारी दिहाड़ियाँ कम हो जाएंगी। गैस है नहीं, बिजली है नहीं, सुबह जाती है 6-6 घंटे बाद आती है। बिजली के बिल देख लो आप, बिल इतने आ रहे हैं कि दिहाड़ी हमारी 500-600 रुपये है, बिजली का बिल भरने जाते हैं 10,000 रुपये का बिजली का बिल आया हुआ होता है। मुल्क का निज़ाम धर्म भरम कर दिया है, आवाम बहुत परेशान है। लेकिन ये हुक्मरान अपने घर को भर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, जजीरे, बंगले, कोठियाँ, हर चीज़ लेते हैं ये। हम गरीब आवाम जो बेचारे अपने बाइक ली हुई थी, वो बाइक बेच कर बेचारे पैदल फिर रहे हैं। पेट्रोल कहाँ चला गया है, गैस कहाँ चला गया है, बिजली कहाँ चली गई है, आवाम क्या करे, कहाँ जाए, इसका कोई हल समझ में नहीं आ रहा। हाल समझ नहीं आ रहा। हम जरा आगे चलते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, मोहम्मद शाहिदुल मुमताज़ाबाद से बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम मेरी 25,000 पे है, और मेरा बिल मेरी जेब में ही है। मैं आपको दिखाता हूँ। आज ही वो वापडा वाला आया था घर पर रीडिंग के लिए, तो मैंने उनको बोला यार मेरी 25,000 पे है, और 4 बेटी हैं मेरी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बहुत ही मुश्किल से गुजारा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए वो मुश्किल वक्त में भी। तो मैंने कहा आपको लोगों का ख्याल करना चाहिए, 300 यूनिट डाल देते, 2 यूनिट कम कर देते। उसने कहा मैक्सिमम 301 यूनिट डालकर उसने 12,600 मेरा बिल भेज दिया। और दूसरा बिल हमारा आज तक लाइफ में कभी भी नहीं आया, 29,000 का बिल आया है। 29,000 का बिल आया है 570 यूनिट का। तो मैंने कहते तो हमने चलाई भी नहीं है, सिर्फ 3 पंखे हैं और 1 कूलर और वाटर मशीन है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने जो है ना कह रहा है आप सॉरी मुझसे मिस्टेक होगी, उसने खुद बोला, हल्फन कह रहा हूँ मैं बावजूद, कह रहा नेक्स्ट टाइम, मैंने एक बंदे का नाम लिया है, कह रहा है नेक्स्ट टाइम अगर आपका बिल आए ना तो मुझे आप ये मेरा नंबर ले लें, मुझे बता देना, मैं आपको 100 यूनिट भी कम कर दूंगा, रीडिंग में से 100 यूनिट कम कर दूंगा। ये हल्फन कह रहा हूँ। मैंने कहा यार ख्याल करो, गरीब आदमी है, कुछ ख्याल करो। ये उसके अल्फाज हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी मनमानी करते हैं। हाँ जी, 300 यूनिट, मैंने कहा 2 यूनिट कम करके ज़रा बिल कम आ जाता। पहले आया 2100 यूनिट का, 164 यूनिट थे, 2100 बिल आया है। अब उसने एक्स्ट्रा करके 300 यूनिट का, 301 यूनिट का 12,600 रुपये उसका बिल भेज दिए बिजली का। तो मैंने उनसे बोला कुछ ख्याल करें, कोई अभी ख्याल नहीं किया उन्होंने, कुछ भी ख्याल नहीं किया। अब नई रीडिंग आज करने आए थे तो कह रहे जी मेरा सेल नंबर ले लें, तो मुझे आप ये अपनी रीडिंग नंबर सेंड कर दिए करना 18 या 20 तारीख को, तो मैं आपके 50-100 यूनिट कम कर दूंगा। मैंने कहा मैं सैलरी पे काम करता हूँ,
तो हमारी शॉप है जहाँ मैं काम करता हूँ। कह रहा बे फिक्र हो, मैं आपका ख्याल करूँगा, आप मेरा ख्याल करना। ये वापडा वाले के अल्फाज हैं, झूठ नहीं बोल रहा, उसका भी ख्याल करना पड़ेगा आपको। ज़ाहिरी बात है। ये आप अंदाज़ा लगा लें किस तरह चल रहा है मुल्क और किस तरह चल रहा है सिस्टम। आम आदमी के लिए सिस्टम में कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ से जिसका दौर लगता है अवाम की जेब खाली करता है, और अब तो अवाम की भी बस हो चुकी है। वो लोग कह रहे हैं कि हम क्या करें। क्या हाल है भाई? ठीक है भाईजान। क्या कर रहे हो? मजदूरी करते हैं भाईजान। आज मिली को नहीं मिली? फिलहाल तो हालात मंदे जा रहे हैं, रुले पड़े हैं। अच्छा, आज क्या करी जाए, हुकूमत को दिहाड़ी नहीं लग रही, रुल रहे हैं, हालात नहीं नजर आ रहा हमारा। तो मनिया भी क्या होता है? मकसद भाई हालात समझ नहीं आती भी क्या हो रहा है। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है भाईजान, बिल्कुल हालात ऐसे ही चल रहे हैं। काम जो 500 रुपये दिहाड़ी रखते हैं, बिल इतने इतने आ जाता है, तो बंदा बिल भरा अपने खर्चा अखराजात देखता है। अवाम के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जी, अवाम के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है, ये आप गुफ्तगू जान रहे हैं। और हम ज़रा कोशिश करेंगे कि आखिर में मज़ीद लोगों से भी बात कर लें, और उसके बाद हम ताजरों के अमल भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। इस वक्त हम आपको मार्केट की सूरत हाल दिखा रहे हैं। ये मुल्तान की मेन मार्केट है, और आप इसको इसके मुनाज़िर देख लेंगे क्या सूरत हाल है। आपको गिने चुने लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और लोग बिलों से ज़्यादा परेशान हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। हुकूमत अभी आई है निगरान, 1-2 हफ्ते हुए हैं इसको, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बस वही महंगाई की शिकायत है, और तो कोई नहीं है। महंगाई ज़्यादा हो गई है जी, महंगाई में बिजली के बिल, ज़ाहिर बात है, हर चीज़ में महंगाई आई है। हर चीज़ में, चाहे खाने पीने के हो, आटा हो, घी हो। बिल्कुल। ये जो सारे हुक्मरान, 2 हुकूमतों ने आपकी खिदमत की है आवाम की 5 साल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM ने, और फिर अब निगरान हुकूमत तैनात हुई आपकी खिदमत के लिए, हमारी खिदमत के लिए। तो इन्होंने 5 5 साल में क्या किया है? हाँ की हुकूमत में कुछ बेहतरी थी, उसके बाद महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और बिजली के बिल तो एक महीने में 3-3 मरतबा बढ़ रहे हैं। एक महीने आप हर बार 5 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए लगा हुआ है इजाफा। नहीं, ज़्यादा आ रहे हैं बिल। 20 यूनिट का कीमत है, बाकी टैक्सेस अलग हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा टैक्सेस हो गए हैं इसमें, बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगे हुए हैं, और ये सूरत हाल है। वजन क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बिजली के बिलों के हवाले से बात करें, कितनी परेशानी का सामना हो रहा है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा परेशानी। लगता है कि कोई हुकूमत रियायत करेगी अवाम के साथ? नहीं, कोई रियायत नहीं करेगी हुकूमत अवाम के साथ। जी, आपने गुफ्तगू जानी, और हम ज़रा ताजरों के पास भी जाएंगे, और उन्होंने हड़तालों की भी कॉल दी है। ज़रा उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। जिस तरह हम बात कर रहे हैं बिजली की कीमतों में इजाफे के हवाले से, और जिस तरह पूरे मुल्क में ज़ायद बिल आने पर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। अब ना सिर्फ सियासी जमातें इस हवाले से ऐलान कर रही हैं, जमात इस्लामी ने भी ऐलान किया, पाकिस्तान पीपल पार्टी जो कि हुकूमत में रह चुकी है, अब उसने भी ऐलान कर दिया है कि हम एहतजाज में जाएंगे और आवाम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। दूसरी जानब ताजरों की जानब से इस हवाले से एहतजाज की कॉल भी दी गई, और मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे भी किए जाएँ तमाम तर मार्केट्स में। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन मरकज़ी तंजीम अंजुमन ताजरान पाकिस्तान ख्वाजा उस्मान सिद्दीकी साहब। उनसे जान लेंगे कि उनकी क्या प्लान्स हैं, और वो इस एहतजाज को किस हद तक लेके जाना चाह रहे हैं, और हुकूमत की जानब से कोई रद्द-ए-अमल उनको आया है या नहीं है, इस पर बात करेंगे। ख्वाजा साहब, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, ना सिर्फ आम शहरी बल्कि दुकानदार, ताजिर, हर कारोबारी बंदा इस वक्त परेशान है बिजली के बिलों की वजह से। आप लोगों का क्या लाएमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ना, ये आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से हम एहतजाज पर हैं, और पूरे पाकिस्तान में, शहरों में, देहातों में करिया रोज़ बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं। महंगाई का ये आलम है, आप पेट्रोल को देख लें, और दालें देख लें, चीनी देख लें, घी देख लें, गर्जे का कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि पिछले 1.5-2 सालों में वो 100% से ज़्यादा महंगी ना हुई हो। रिज़ल्ट ये है कि जो बेचारा एक गरीब क्या करेगा, जिसकी तनख्वाह 15 से 20 हज़ार रुपये है, उसका घर भी रेंट पर है, और 5-5, 6-6 बच्चे हैं, वो बेचारा कैसे गुजारा करेगा? या तो वो जो है वो ख़ुदकुशी करेगा, या फिर चोरी डकैती की वारदातें करेगा। इस लिहाज को देखते हुए अब हमारा जो ताल्लुक़ है छोटे ताजरान से, जो कि शॉपकीपर हैं, शटल वाले हैं,
सुबह आए उनकी दुकानें रेंट पर हैं, बहुत सारों का 80% जो है वो उनके घर रेंट पर हैं। तो वो बेचारा क्या कि सुबह आकर बैठते हैं, एक बिजनेस नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर रह गया है। उधर से आप देख रहे हैं कि मुल्क की 70% इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है। यहाँ तक ये हालात हो गए हैं कि मुझे ये पता चला है कि जी एक वीक में 40,000 पाकिस्तान के ताजरों ने जो है वो पासपोर्ट जिनके पास नहीं थे वो बनने के लिए दिए हुए हैं कि ताकि हम मुल्क छोड़ जाएं। यहाँ पर अब है कुछ नहीं, और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 76 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, आज तक हम पटरी पे खड़े नहीं हो सके। देखिए अफगानिस्तान ने 20-22 साल जंग लड़ी है, उसके बावजूद भी आज वहाँ पर डॉलर 80 रुपये से 85 रुपये तक है। हमारे हमसाया इंडिया को देख लें, ईरान को देख लें, सबसे हम पीछे रह गए। इसकी वजह क्या है कि खुदा के लिए कोई ऐसा हुक्मरान ले आए जो कि अपने इस मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा कर सके। बिल्कुल आपकी बातें बजाय हैं और लोग एहतजाज भी करें और यही बातें करें कि जीना मुश्किल हो गया है। अब आप लोग एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों के पास क्या लाए अमल है, किससे मुज़ाकरात करेंगे, डिमांड क्या होगी, और सियासी जमातें तो साइड में बैठी हैं, अब आप लोग बाहर आए हैं तो आप लोग कब तक एहतजाज करें? देखिए ना, हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, हम ताजर लोग हैं, हमारे लिए जो भी इक़्तिदार में है वो हमारा है। हम तो आज भी मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म से, वज़ीर आला पंजाब से, और इनसे क्या नाम है पूरे पाकिस्तान के जो वज़ीर तवानाई हैं उनसे कि खुदा के लिए 80 रुपये से ज़्यादा यूनिट का रेट हो गया है। और ऐसे ऐसे भी हैं, मैंने एक बिल देखा है जो कि सिर्फ 2 यूनिट चला हुआ है और वो मीटर बंद है, उसका बिल कितना है 37,000 रुपये। देखिए ना, अब ये हालत जिस मुल्क की हो, अब देखिए आप मेरे साथ चले, मैं भी आपको रोड पर ले जाता हूँ, जो भी बेचारा गरीब है, जो भी मांगने वाला है, जो भी दिहाड़ीदार है, जो भी मजदूर है, वो बेचारे रो रहे हैं, उनकी चीखें निकल रही हैं, तो वो बेचारे क्या करें। तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि खुदा के लिए जो आए दिन किसी दिन 1 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो किसी दिन 3 रुपये बढ़ा रहे हैं, तो किसी दिन 6 रुपये बढ़ा रहे हैं, और ये तो 6 रुपये 5 रुपये ये 3 रुपये का चक्कर नहीं है। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, टैक्सेस लगाते हैं, तो वो 12-13 रुपये से ज़्यादा चले जाते हैं। तो इस लिहाज से वो बेचारा गरीब, मैं वही कह रहा हूँ कि आज हमारा हुकूमत तो ये कहती है कि IMF की शराइत है, मुश्किल फैसले मजबूरी में है, कौम सब्र करे, बर्दाश्त करे। अब मुश्किल फैसले तो होनी है, अब पेट्रोलियम मसनूआत फिर इजाफा हो जाना है, फिर बिजली कीमतें 5-6 रुपये उस दिन बढ़ाई हैं, तो ये सिलसिला तो चल रहा है। फिर डिमांड कौन मानेगा, क्योंकि सियासी जमातें तमाम तर IMF के माहदे पर एग्रीमेंट का इजहार कर चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। फिर मुतालबात कौन मानेगा, फिर कैसे IMF की शराइत को कौन नहीं मानेगा, कौन सी हुकूमत नहीं मानेगी? पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले कि इस मुल्क को इस स्टेज पर लाने वाला है कौन। IMF को हम तो नहीं लाए, ताजर तो नहीं लाए। आज भी आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, मेरा ख्याल 40% पूरे पाकिस्तान में या तो वो बिल अदा नहीं करते, फ्री में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके अपने जो मुलाजमीन हैं ये अब कह रहे हैं कि जो 76 साल गुजरने के बाद कि जो 17 ग्रेड से जो ऊपर के मुलाजमीन हैं उनको हम यूनिट्स नहीं देंगे, तो उससे नीचे वाले किसी के 1000 यूनिट्स हैं, किसी के 500 यूनिट्स हैं मंजूर शुदा, किसी के कितने वो बिजली बेच रहे हैं, तो उनको क्यों पाबंदी नहीं लगाते? अगर उनको पाबंदी लगाएं, पूरे मुल्क पाकिस्तान में एक टेरर बनाएं, जो बिजली का बिल नहीं देता उसका बिजली बंद कर दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, उसका बिजली का कनेक्शन काट दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। दूसरा यह है कि जितने भी इन्होंने आज तक कर्ज लिए हैं, अब मेरा ख्याल है 130 अरब डॉलर से कहीं ऊपर चले गए, वो हमने तो नहीं लिए, वो इन्होंने लिया, इन्होंने अपने अल्लाह तल्लो में खर्च किए हैं ना, इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं। कोई फ्रॉड दे को 400 अरब रुपए का, कोई 200 अरब रुपए का, उसके बाद पता चलता है कि जी वो 6 माह अंदर है, बाद में उन्होंने कोई नोट खिलाया, अंदर से मुका किया, वो बाइज्जत बरी हो गए। ये हमने तो नहीं लिए। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा करें, किसी को ना देखें, जिस वक्त करप्शन है उसके करप्शन बरामद करें, आज मुल्क अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। तो ये बेहतर हो सकता है। लास्ट में बता दें कि अभी सियासी जमातों ने शटर डाउन हड़तालों में भी कॉल आ रही है, 2 सितंबर की भी बात हो रही है, तो क्या ताजर भी उसमें शामिल होंगे? देखिए ना, मेरी बात सुने, 2 सितंबर की कॉल दी है मैंने, ये किसी उस वक्त किसी सियासी जमात ने नहीं दी थी, ना तो हम किसी सियासी जमात के अलाकार हैं, ना हम किसी सियासी जमात की मानेंगे। यह हमारा ताजर काज है, हम खुद लड़ेंगे। हाँ, वो बैठकर अपने नंबरबाजी के लिए वो ऐलान कर देते हैं कि जैसे कल जमात इस्लामी ने किया या PPP कर रही है, तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम ताजर लोग हैं, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। 2 सितंबर को आप शटर डाउन कॉल करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह शटर डाउन करेंगे, और अगर उसके बावजूद 2 सितंबर को शटर डाउन करेंगे, और 30 अगस्त को हमने पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया हुआ है।
वो भी करेंगे। आजकल भी आप देख रहे हैं, कल भी हुए हैं, आज भी हुए हैं, सारे एहतजाज हो रहे हैं। उसके बावजूद भी 2 सितंबर के बाद गवर्नमेंट अगर ना मानी तो आइंदा का लाहे अमल भी हम देंगे इंशाल्लाह। वो भी जो फरमाई तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। चलेंगे ना स्टेप बाय स्टेप। पहले कहेंगे जी बिल अदा ना करें, देखें ना पेट्रोल देखें 300 रुपये तक जा पहुंचा है, और अब फिर इतला आ रही है कि जी पेट्रोल की कीमत जो है वो 15-20 रुपये और बढ़ाई जा रही है। तो बेचारा गरीब क्या करेगा, छोटा ताजर क्या करेगा? अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और गरीब जो है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ये कौन से मुल्क का कानून है? ऐसे तो पूरी दुनिया में नहीं होता। एहतजाज करने वालों के खिलाफ FIRs भी और गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं आजकल, तो सीज़न चला हुआ है, तो आप लोग भी तैयार हैं? देखें ना फिर कितने करेंगे, फिर पूरे मुल्क के ताजरों को, फिर पूरे मुल्क की आवाम को जो खुदकशी कर रहे हैं उनको इजाज़त दे दें, आप खुदकशियाँ कर लें या उनको अंदर कर दें। हाँ तो या फिर चोरी डकैती की वारदातें, आप तो हालत ये हो गई है कि 100 से ज़्यादा डेली वारदातें हो रही हैं, और SHO साहब जो है वो एक पर्चा भी नहीं काटते, FIR ही नहीं देते, कह के थक जाते वो FIR। तो जिस मुल्क में ये हालत हो या लॉ आर्डर की तो बात ही नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये बात क्या करें। जी आपने गुफ्तगू जानी, हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान। उनका ये कहना था कि 2 सितंबर को कॉल दी है शटर डाउन की, हड़ताल की, और इस हवाले से मुल्क भर में तमाम तरह दुकानें बंद करके एहतजाज किया जाएगा। मुतालबात वही आ रहे हैं कि बिजली कीमतों में कमी की जाए, जो बिल हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होता जा रहा है। तो ये आम आदमी, आम ताजिर, आम दुकानदार के बस की बात नहीं है कि वो ये सारे कुछ एक ही बिज़नेस या जो भी वो काम करते हैं उसमें सारे खर्चे बर्दाश्त करें। और हुकूमत वक्त जो भी है वो इस वक्त टैक्स पे टैक्स लगाती जा रही है, और टैक्स इस हद तक लगाया जा रहा है जैसे कुछ सवाब का काम हो। वासा के बिलों को भी बढ़ा दिया गया, मैपको के बिल, सुई गैस के बिल, खाने पीने की अशिया, आटा, घी, चीनी, जिस चीज़ का भी नाम लिया जाए तो उसमें टैक्सेस इतने ज़्यादा लग चुके हैं कि अब किसी के बस में ही नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों को एक वक्त में मैनेज कर पाए। तो ये सूरत हाल है। आप देखना ये है कि आपको सूरत हाल पहले भी दिखाई, आवाम के भी आपने रिमार्क्स जाने, ताजरों के भी गुफ्तगू जानी, अब एहतजाजी मुजाहरों का आगाज़ तो हो चुका है। अब देखना ये कि हुकूमत आम आवाम को रिलीफ देने के लिए क्या कोई इक़दाम उठाती है या फिर अपनी रवायती हट धर्मी का मुजाहरा करती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।